નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ પ્રોગ્રામ જે સમસ્યા તમારી લડત અમારી, અને હું છું આપની સાથે કિશન તિવારી. શરૂઆત કરીએ આજે આપણે ચર્ચાની. તો જે પહેલગામ હુમલા બાદ પાકિસ્તાની સેનાએ બુધવારે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પરની ઘણી ચોકીઓ ખાલી કરી દીધી છે, અને પાકિસ્તાની સેનાએ આ ચોકીઓ પરથી ધ્વજ પણ હટાવી લીધા છે. તમને જણાવી દઈએ કે કઠુઆના પ્રગ્યાલ વિસ્તારમાં આ જગ્યાઓ ખાલી કરવામાં આવી છે, અને આ દરમિયાન સરકારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર બોર્ડનું પણ પુનર્ગઠન કર્યું છે. ભૂતપૂર્વ રો ચીફ આલોક જોશીને તેના ચેરમેન બનાવવામાં આવ્યા છે. આપણે વાત કરીએ તો મંગળવારે અગાઉ પીએમ મોદીએ ત્રણેય સેના પ્રમુખો NSA અજીત ડોભાલ, CDS અનિલ ચૌહાણ સાથે 1.5 કલાક સુધી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી હતી, અને જેમાં પીએમ મોદીએ સશસ્ત્ર દળોને છૂટ આપી દીધી હતી અને કહ્યું હતું કે સેનાએ આતંકવાદ સામે કાર્યવાહીની પદ્ધતિ, લક્ષ્ય અને સમય નક્કી કરવો જોઈએ. બીજી તરફ આપણે જોઈએ તો પ્રધાનમંત્રી નિવાસ સ્થાને કેબિનેટ કમિટી ઓન સિક્યોરિટી એટલે કે CCSની બેઠક સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. આ CCSની બીજી બેઠક છે, અને પહેલી બેઠક પહેલગામ હુમલાના બીજા દિવસે એટલે કે 23 એપ્રિલે યોજાઈ હતી. પહેલગામ હુમલા પછી નિયંત્રણ રેખા પર યુદ્ધ વિરામનું ઉલ્લંઘન ચાલુ છે. પાકિસ્તાની સેનાએ બુધવારે 6ઠ્ઠી વખત યુદ્ધ વિરામનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. બારામુલ્લા અને કુપવાડ સેક્ટરમાં નિયંત્રણ રેખા પર ગોળીબાર થયો હતો, અને જેનો ભારતે જવાબ આપ્યો છે. આપણે બીજી બાજુ વાત કરીએ તો પાકિસ્તાને એવો દાવો કર્યો છે કે ભારત આગામી 24 થી 36 કલાકમાં તેની સામે લશ્કરી કાર્યવાહી કરી શકે છે. પાકિસ્તાનના માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અતાઉલ્લાહ તરારે બુધવારે મોડી રાત્રે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ દાવો કર્યો હતો. તરારે કહ્યું કે તેમને વિશ્વસનીય ગુપ્ત માહિતી મળી છે કે ભારત પહેલગામ ઘટનાને બહાનું બનાવીને આ કરી શકે છે, અને તેમને કહ્યું કે પાકિસ્તાન પોતે આતંકવાદનો ભોગ બન્યું છે અને આ કટોકટીના દુઃખને ખરેખર સમજે છે. આપણે હંમેશા દુનિયામાં આની નિંદા કરીએ છીએ. તરારે કહ્યું કે જો ભારત કોઈ લશ્કરી હુમલા કરશે તો પાકિસ્તાન ચોક્કસ અને મજબૂત જવાબ આપશે. તેમણે કહ્યું કે અમે કોઈ પણ કિંમતે પાકિસ્તાનની સાર્વભૌમત્ય અને પ્રાદેશિક અખંડિતતાનું રક્ષણ કરીશું. તમને જણાવી દઈએ કે હમણાં હાલમાં જે આ પહેલગામમાં હુમલો થયો હતો, અને તેને લઈને અત્યારે હાલ આ સમગ્ર ઘટના જે છે અને સરકાર દ્વારા પણ કડક રૂખ કરવામાં આવ્યો છે. અને આ ખાસ વાતચીતમાં મારી સાથે વધુ વિગતવાર વાત કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અમારા मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. जी राकेश जी, जो ये प्रकार से जो भी ये घटना हुई थी और उसके बाद से सरकार का कड़क रुख एक देखने को मिल रहा है, और जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान जो आर्मी चीफ है उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है. जी, आपका अभिप्राय? देखिए, पहलगाम हमले के 8 दिन बाद पाकिस्तान जी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी हैं. इस तरह की खबरें हैं. पाकिस्तानी सेना ने इन पोस्ट से झंडे जो है भी हटा लिए हैं. तो कठुआ के परगवाल इलाके में ये पोस्टें खाली की गई हैं. पाकिस्तानी सेना LOC पर लगातार सीज फायर का वायलेशन भी कर रही है. पाकिस्तानी सेना जिस तरह से पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा है, जिसकी भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया. इस बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को नए सिरे से जो है उसका गठन किया है, और पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है. तो प्रधानमंत्री के आवास पर आज आप सुबह से ही आपने देखा कि किस तरह से गहमा-गहमी थी. एक के बाद एक बैक टू बैक 4 बैठकें प्रधानमंत्री की अगुवाई में, चाहे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की बात हो, CCPA की और CCA और कैबिनेट, तो लगातार जो है प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठकों का दौर चल रहा था. कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जैसा कि आप जानती हैं जी. जैसा कि आप जानते हैं कि किशन प्रधानमंत्री ने तीनों जब आर्मी चीफ से मुलाकात की थी तो आर्मी को साफ तौर पर फ्री हैंड दिया था, और कहा था कि जो कार्रवाई करना है उसे समय और तिथि आपको तय करना है. तो ये PM मोदी ने तीनों सेना प्रमुख NSA अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान के साथ मीटिंग की थी, और सेनाओं को आतंकियों पर एक्शन के लिए फ्री हैंड दिया था, और कहा कि तरीका वक्त आप तय कीजिए. तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार जो हालात हैं
वो काफी अहम है। और भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशकों, जिसको डीजीएमओ, ने कल हॉटलाइन पर बातचीत की और पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन पर चर्चा की। भारत ने नियंत्रण रेखा पर, जो सूत्रों से रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के किए जा रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन के खिलाफ पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। जी तो ये तमाम चीजें हैं जिसका डेवलपमेंट है। जी जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि एक सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो पिछले कई दिन से किसी बंकर में या तो छुपे हैं या उन्होंने देश छोड़ दिया हुआ है। और कुछ खबरें इस प्रकार से भी निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उन्होंने अपने पूरे परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया है। तो ये किस प्रकार से वो वहां पे, और ये जो आर्मी चीफ हैं ये उनका बयानबाजी काफी इस तरह से बयान भी सामने आ रहे हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, तो जी इस पे क्या देखिए, कुछ सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जी। पाकिस्तान जो सेना प्रमुख हैं जनरल असीम मुनीर, उन्होंने अपने परिवार को बाहर भेज दिया है। अब पाकिस्तानी सेना में मनोबल की कमी और इस्तीफों की अफवाह है। तो ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई, पाकिस्तान में जिस तरह से खाने के लिए लोगों को लाले पड़े हैं, लोग जो है परेशान हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और ऐसी स्थिति में अगर भारत द्वारा कार्रवाई की जाती है तो आज समझिए क्या स्थिति भयावह होने वाली है। तो राजनीतिक मामलों में सेना के दखल और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जनता का विश्वास कम हुआ है और जो विद्रोही भी हैं वो पाकिस्तानी सेना के हौसलों को तोड़ दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस्लामाबाद, असीम मुनीर ने कुछ दिनों पहले भड़काऊ भाषण देकर पहलगाम आतंकी हमले की पटकथा लिखी थी और उन्होंने इस भाषण में कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। तो याद दिलाना चाहूंगा कि इसको लेकर भारत सरकार का रुख साफ है। समय और तारीख सेना को तय करना है। केंद्र जहां तक मोदी सरकार है, साफ तौर पर जो सेना है, तीनों सेनाओं के प्रमुख को छूट दे दी है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार वो दिन कब आता है। लेकिन ये जरूर तय है कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई इस बार ऐसी होगी कि पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान उठ नहीं पाएगा। जी जी जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है तो क्या भारत, हम ऐसा मान सकते हैं कि क्या जो भारत है वो सर्जिकल स्ट्राइक 3 उसमें देखने को मिल सकता है भारत के द्वारा? देखिए, सर्जिकल किसन ऐसा है ना कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, इस बार बड़ा स्ट्राइक होगा। आप एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, और इस बार जो स्ट्राइक होगा पाकिस्तान सोच नहीं पाएगा और पाकिस्तान को जो नुकसान होने वाला है पाकिस्तान उसकी भरपाई नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में सेना एक ऐसे संकट से गुजर रही है जब जनरलों द्वारा राजनीतिक मामलों में खुलेआम दखल देने के कारण जनता का एक बड़ा हिस्सा खुले तौर पर सेना के खिलाफ है। और यह पाकिस्तानी जनरलों की कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जब लोगों ने सेना के खिलाफ खुलकर वहां बोलना शुरू किया। ऐसी स्थिति में उन सैनिकों के मनोबल को प्रभावित ये सब कर रही है जो पाकिस्तान में बढ़ते विद्रोह के कारण बहुत ही असुरक्षित तरीके से काम करते हैं। जी जी, जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो सीएम है मरियम नवाज, उनकी तरफ से भी गीदड़ भभकियां दी जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है इस वक्त कि जब ये सरकार हमारी कड़े रुख में है और उसके बावजूद जब पाकिस्तान की तरफ से भी गीदड़ भभकियां दी जा रही है, और जो एक रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि कल रात को 2 बजे पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें कहा था कि अगर भारत की तरफ से कुछ किया गया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो फिर ये गीदड़ भभकियां देने का कारण क्या है? देखिए किसान, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है क्योंकि रात में 2 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और ये कहना कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत द्वारा हमला किया जा सकता है। तो आप इसकी मजमून समझ सकते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तानी सेना कितनी बौखलाई हुई है। और हाल ही में सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेना में इस्तीफों और सैनिकों के भाग जाने की लगातार खबरें आई हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित सैन्य पत्राचार के कई दस्तावेज से पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना में बड़े पैमाने पर इस्तीफों की खबरें आ रही हैं।
आईएस जो आईएसपीआर है कि उसके महानिदेशक द्वारा 26 अप्रैल को जारी एक वायरल एडवाइजरी में सशस्त्र बलों के सभी रैंकों को संबोधित करते हुए उनसे मनोबल बनाए रखने और राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी की पुष्टि करने का अनुरोध किया था। जी जी जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। હવે આ ચર્ચા પર વધુ વિગતવાર વાત કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે જમ્મુ કાશ્મીરથી हमारा संवाददाता आशिक मीर। जी आशिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। जी आशिक, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वहाँ पे ये जो जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में जो घटना हुई थी, इस घटनाक्रम के बाद में अभी वहाँ पे किस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है और वहाँ पे अभी सेना के द्वारा किस प्रकार से क्या कार्यवाही की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आतंकी घटना पहलगाम में आज से कुछ दिन पहले घटी, उसके बाद कहीं ना कहीं सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन जो है उनमें तेजी लाई गई है और कई सारी उपलब्धियां जो है सेना सुरक्षा बलों को मिल रही है। कल ही हमने देखा कि किस तरह से 3 आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद भी जो है बरामद हुआ है। लगातार एनआईए घटनास्थल पर है इस समय भी, और जब ये घटना घटी तो तब से लेकर अब तक एनआईए ने कई बार जो है इस जगह का विजिट किया और वहां पर तमाम तर चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ये आतंकी जो है पहलगाम के इस बड़सरन इलाके में पहुंचे और वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन को जो है निशाना बनाया। फिलहाल अभी तक की जानकारी के मुताबिक हाशिम मूसा नामी आतंकी का नाम जो है सामने आ रहा है, जिसने इस पूरी घटना को जो है वहां पर अंजाम दिया। लगातार वहां पर सेना सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो जांच एजेंसी एनआईए है उसके द्वारा जो है सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी तक कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे साफ तौर पर पता चला है कि जो हाशिम मूसा है वो पाकिस्तानी आर्मी में एनएसजी कमांडो के तौर पर जो है रहा है और उसने पाकिस्तानी आर्मी को छोड़कर लश्कर तैयबा टेरर रैंक जो है वो ज्वाइन की, यानी आतंकी संगठन को ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने जो है कश्मीर में कई सारी ऐसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। अगर हम बीते साल की बात करें तो बीते साल गांदरबल के गगनगीर में भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इसी तरह फायरिंग की गई, जहां पर नॉन लोकल मजदूरों पर जो है फायरिंग की गई और उन्हें जो है मारा गया। फिलहाल लगातार एनआईए जो है वो घटनास्थल पर है और लगातार वहां से सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस जगह पर ये वारदात हुई है, जहां पर आतंकियों ने वहां सिविलियन को निशाना बनाया, वहां से एनआईए को जो है कुछ लीड्स मिली है, जिसमें एक स्थानीय फोटोग्राफर जो है वो उस समय वहां पर मौजूद था जब ये घटना घटी और उसने अपने प्रोफेशनल कैमरे के जरिए जो है इस पूरी घटना का वीडियो बनाया है, जो कि अब एनआईए के पास है। इस वीडियो से कई सारे चेहरे जो है वो बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि आतंकियों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है जो आतंकी इस घटना में शामिल रहे हैं और कश्मीर के एक आतंकी का भी नाम इसमें है जो आदिल ठोकर करके है और उसके ऊपर भी सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जी जी, जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है कि इस पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस वक्त बौखलाहट में है और उनकी तरफ से जिस दिन से ये हमला हुआ उस दिन से सतत कंटिन्यू देखा जा रहा है कि अगले दिन से ही सीज फायर का भी वहां पे उल्लंघन किया जा रहा है। तो वहां पे किस प्रकार की परिस्थिति अभी बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल जिस जगह पर हम इस समय मौजूद है ये एलओसी यानी सीमा से सटीक इलाका, जो कि आप मेरे पीछे पहाड़ी भी देख रहे होंगे, बिल्कुल एलओसी 0 लाइन पर हम इस समय है और कुछ घर जो है आपको दिख भी रहे होंगे जो पीओके के इलाके में पड़ते हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है और अभी तक कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को जो है निशाना बनाया गया है और लगातार इस तरह की जो ऑपरेशन में तेजी लाई गई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की सेना एक तरफ जो युद्ध की तैयारी में लगी हुई है, क्योंकि हमने कई ऐसे वीडियोस देखे जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना जो है अपनी तमाम फौज को जो है इन्हीं सीमावर्ती इलाकों में तैनात कर रही है और जितनी भी आर्टिलरी होती है यानी जितनी भी बूफूस टैंक है वो वहां पर सीमावर्ती इलाकों में ले जाने की कोशिश कर रही है। साथ साथ पीओके जो कि पाक अधिकृत कश्मीर इलाके है, वहां पर स्थानीय लोगों को कहा जा रहा है कि आप इन घरों को जो है खाली करें। कहीं ना कहीं आतंकवादियों की मंशा भी रहती है, जब सीज फायर का उल्लंघन होता है तो पाकिस्तान की सेना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो है घाटी में घुस जाए और यहाँ पर हालातों को खराब करे। जी, जिस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम के बाद में देखा गया कि जो जांच एजेंसियां
के द्वारा जो काम किया जा रहा है वहां पे, तो क्या भी अभी इस समय क्या अगर हम बात करें तो क्या कुछ निकल के आ रहा है सामने कि ये जो पूरी घटना हुई वहां पे लोकल्स के द्वारा क्या सपोर्ट था, या लोकल में कुछ लोगों के मिले हुए की कुछ खबर है कि नहीं, क्या है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पहलगाम में ये आतंकी घटना घटी, वहां पर जो टूरिस्टों को ऊपरी इलाके में ले जाने वाले टूरिस्ट गाइड और वहां पर स्थानीय घोड़े वाले जो है और एटीवी राइडर्स जो इन टूरिस्टों को बैतरन के इलाके तक पहुंचाते हैं, तो अब उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसी एनआईए को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस घटनाक्रम में उस वक्त मौजूद रहे हैं वो लोग अब एक एक करके सोशल मीडिया के जरिए इन वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, जिससे जांच एजेंसी को काफी ज्यादा मदद भी मिल रही है। आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि कौन कौन सा आतंकी इस घटना में शामिल रहा है, लेकिन फिलहाल एनआईए जो है इस पर जांच कर रही है और उन लोगों को जो है लगातार पूछताछ में ले रही है जो इस समय वहां पर मौजूद रहे हैं। जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वहाँ पे अभी फिलहाल पाकिस्तान के बौखलाहट सामने आई है, और जो रात को 2 बजे उन लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि भारत अगर हमसे युद्ध करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वहाँ पे क्या, इस पे आपकी क्या राय है? वहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस वक्त के क्या हालात हैं और क्या परिस्थिति बनी हुई है? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग जब से ये आतंकी घटना हुई है तब से जम्मू कश्मीर के लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी है उन्हें जो है तबाह करने की जरूरत है। जितनी भी वहां पर आतंकियों की चौकियां है, उन्हें जिस हिसाब से पुलवामा अटैक के बाद 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, इसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक स्थानीय लोग चाहते हैं। फिलहाल जो पाकिस्तान में स्थिति बनी हुई है वहां पर जो पॉलिटिशियन है उनका एक बयान आ रहा है, वही सेना का अलग बयान आ रहा है। यानी दोनों को तालमेल की अगर हम देखें तो दोनों के बयानों में अंतर काफी ज्यादा है। कोई गीदड़ बत्ती दे रहा है तो कोई बातचीत की बात कर रहा है कि बातचीत से ही मसले हल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सामने देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान के मुख्यमंत्री मरियम नवाज की बात करें, जिन्होंने हालिया दिनों ही परमाणु बम की धमकी दी, यानी इस तरह के बेतुके बयान जो है लगातार सामने आ रहे हैं। कोई लीडर ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि सिंधु नदी का पानी अगर बंद किया गया तो सिंधु नदी से खून बहना शुरू हो जाएगा। यानी ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की फ्रस्ट्रेशन वहां पर सियासी लीडरान के बीच में भी पड़ी हुई है। साथ ही साथ जो आर्मी है उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं युद्ध अभ्यास की तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। अभी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो ये घटना हुई थी उसके बाद से वहाँ पे पर्यटकों की क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जिस प्रकार से तमाम खबरें निकल के आ रही है सामने कि जम्मू कश्मीर पूरा खाली हो चुका है, इस वक्त पर्यटक नहीं है वहाँ पे, और जब अभी ये फिलहाल 4 धाम की जो यात्रा है अभी चालू हुई है, तो इस वक्त को लेकर और ये सारी किस प्रकार से तैयारी अभी चल रही है वहाँ पे? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इस समय एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो सेना सुरक्षा बलों को जो है कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान भी रखने की जरूरत है कि किस तरह से एक आम नागरिक की जान को बचाया जा सके, क्योंकि आतंकी जो है अब कहीं ना कहीं एक और मंसूबे के साथ जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिन आतंकियों ने ये नहीं देखा कि किस तरह से वो सिविलियन या टूरिस्ट पर फायरिंग कर दे, तो इसके चलते जो है कई सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स है, लगभग 87 में से 48 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनको अब टूरिस्टों के लिए बंद कर दिया गया है। यानी एहतियाती तौर पर ये चीजें जो है अब की जा रही है ताकि और कैजुअलिटी जो है नहीं हो जाए, क्योंकि आतंकी जो है लगातार इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो डिस्टर्बेंस जो है या इसी तरह की अशांति का माहौल जो है जम्मू कश्मीर भर में बनाए। फिलहाल जिस हिसाब से टूरिस्ट का नंबर है वो है तो कम, लेकिन एक एक करके टूरिस्ट जो है आ रहे हैं, लेकिन जब तक ना पूरी तरह से हालात सामान्य हो जाए तब तक फिलहाल इसी तरह जो है ये सीजन जो है देखने को मिलेगा। जी, अभी जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जो पूरी सेना की द्वारा जो तैयारी की जा रही है और 4 धाम की यात्रा अभी जो सामने दिखाई दे रहा है, और उसको लेके भी काफ़ी सारी तैयारियां करनी और तैयारियां की गई है। और फिलहाल इस वक्त जो एक सबसे बड़ा टेंशन का माहौल बना हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार इस वक्त पूरे गुस्से में है, और उसके साथ साथ पूरा देश अभी ये पूरी घटना को लेके गुस्से में है, और पूरा देश चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। तो ये वहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं, उन लोगों के क्या विचार है और लोग क्या चाहते हैं? देखिए बिल्कुल, 2019 के बाद लोगों के विचार जो है काफी ज्यादा बदल चुके हैं, क्योंकि हमने देखा दफा 370 यानी आर्टिकल 370 के टूट जाने के बाद लोगों में जागरूकता जो है वो आई है।
स्थानीय लोगों का मानना है कि आज जिस तरह की डेवलपमेंट वो काफी सालों से जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट जो है इन्हीं कुछ सालों में हुई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पीसफुल माहौल जो है वो बना हुआ था। बीते कुछ सालों से हमने देखा कि यहाँ पर इस तरह की आतंकी घटना जो है वो नहीं थी। यहाँ पर माहौल साजगार था, स्टून पेल्टिंग नहीं होती थी, आतंकवादी गतिविधियां जो है काफी कम रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो जम्मू में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस थी, लेकिन घाटी में शांति बनी हुई थी काफी सालों से। यहाँ पर रात भर भी दुकानें जो है खुली रहती थी। लेकिन जिस तरह से अब पहलगाम का अटैक हुआ, उस अटैक में जो है कहीं ना कहीं अब पूरी दुनिया को हिलाया, साथ साथ स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी इसका बुरा असर पड़ा हुआ है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि अब जिस तरह से आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, यही हाल आतंकियों का भी होना चाहिए, यानी उन्हें भी पकड़कर जो है मारने की कवायद जो है अब तेज होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा जब ये अटैक हुआ उसके बाद उत्तर से लेकर दक्षिण के इलाकों में जो है लगातार प्रोटेस्ट होते रहे। उन इलाकों में भी लोग सामने निकल कर आए जहां पर लोग कभी अलगाववाद और आतंकवाद की बात करते थे। यानी यहाँ के पॉलिटिशियन, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन या हुर्रियत अलगाववाद के लीडर जो है अब एक ही बात बोल रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है जो कश्मीर में देखने को मिल रही है। वक्त एक जो खबरें निकल के आ रही है कि हाशिम मूसा को लेके वहां पे भी किस प्रकार से क्या चल रहा है? आखिरी सवाल। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम हाशिम मूसा की बात करें, हाशिम मूसा एक ऐसा आतंकी है जो कि पहले पाकिस्तानी सेना में एक कमांडो की हैसियत से काम कर चुका है। यानी अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना ने इसे टास्क दिया है कि किस तरह से आप माहौल बिगाड़ सकते हो। अगर ये किसी ऐसे ही आतंकी, मामूली किसी आतंकी का काम होता, वो उस घटना स्थल पर होते तो इतनी कैजुअलिटी शायद नहीं होती। क्योंकि जो हाशिम मूसा है ये काफी ट्रेंड सैनिक है, और उसके बाद इन्होंने जो है लश्कर तैयबा जो टेरर आउटफिट है, आतंकी संगठन है, उसमें शामिल रहे। और कहीं ना कहीं ये प्लान के तौर पर ये अटैक किया गया है, और इसी जगह पर ये अटैक किया गया है जहां पर लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, और वहां से लोगों को रेस्क्यू करना जो है काफी मुश्किल था। और इस जगह पर टारगेट एग्जीक्यूट करना जो है ये प्लान तरीके से किया गया है। और फिलहाल जिस तरह से हाशिम मूसा का नाम सामने आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि हाशिम मूसा के साथ और 3 ऐसे पाकिस्तानी आतंकी जो है वो इस घटना में शामिल रहे हैं। लेकिन सुरक्षा और जांच एजेंसी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी आतंकी इसमें मुलव्वस है उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करके उन्हें मारा जाए। जी धन्यवाद आशिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। હવે જોવાનું એ છે કે જે કેન્દ્ર સરકાર જાતિ વસ્તી ગણતરી કરાવશે અને આ નિર્ણય આજે બુધવાર એટલે કે કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો છે। તમને જણાવી દઈએ કે કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે એક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું હતું કે જાતિ વસ્તી ગણતરી મૂળ વસ્તી ગણતરીમાં જ સામેલ થશે અને વસ્તી ગણતરી આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરથી શરૂ કરાઈ શકે છે અને એને પૂર્ણ થવામાં ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષ લાગશે। આમ જો સપ્ટેમ્બરમાં પણ વસ્તી ગણતરીની પ્રક્રિયા શરૂ થશે તો અંતિમ તબક્કા એટલે કે વાત કરીએ તો 2026ના અંતે કે 2027ની શરૂઆતમાં આવશે। તો આ બધી નિર્ણય લઈને સરકારે શું કહ્યું? તો કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે 1947થી જાતિ વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવી નથી। મનમોહન સિંહે જાતિ વસ્તી ગણતરીના વાત કરી હતી। કોંગ્રેસે જાતિ વસ્તી ગણતરીની વાતનો માત્ર પોતાના ફાયદા માટે જ ઉપયોગ કર્યો છે। જાતિ વસ્તી ગણતરી માત્ર કેન્દ્રનો વિષય છે અને કેટલાક રાજ્યોએ આ કામ સારી રીતે કર્યું છે। જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો 2021માં વસ્તી ગણતરીને કોવિડ-19 મહામારીને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવી હતી। વસ્તી ગણતરી સામાન્ય રીતે દર 10 વર્ષે કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વખતે થોડોક વિલંબ થયો છે અને આની સાથે જ વસ્તી ગણતરીનું ચક્ર પણ બદલાઈ ગયું છે। એટલે કે જે આગલી છે વસ્તી ગણતરી તે 2035માં થશે। અને આજ હાલ માટે આ ચર્ચા બસ અહીંયા જ આપણે પૂર્ણ કરીએ। આવતીકાલે ફરી મળીશું એક નવા મુદ્દાઓ સાથે। ત્યાર સુધી જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત।